Yashwant Deshmukh, in the 80s and the 90s, the Mandal agitation for reservation was the most potent political agitation. It even beat Hindutva soon after the demolition of the Babri Masjid at the disputed structure in Ayodhya. So it has massive electoral potency in the past. How do you assess the electoral potency of the caste census and this demand that is being made by the India Alliance at this moment? Well, Rahul, this is a question of Mandal 1.0 and Mandal 2.0, and there is a very, very important academic aspect to it as well. There is a series of tweets on research done by my colleague and friend in IIM Ahmedabad, that explains that he has compared the 1931 caste census in Bihar with the current findings which have come out. And what he found was very, very interesting, that barring the 5% loss of general caste, all other caste groups have been more or less in the same line, which they found in 1931. Muslim proportion has gone up by 3%, which is, in any case, if there would have been 21 sample census, that would have come out. And this lack of or 5% loss of general caste group in the population size is directly attributed to the migration pattern, on which much has been written and much has been said about. So, bigger question was there anything new, surprising that came out of the caste census in Bihar? The big resounding answer is no. So, if there was nothing new that came out of that, probably the question arises is that within the reservation and the reservation, the question is not if certain caste groups' population or proportion has gone up or gone down. Question is different caste groups are trying or saying or asking that we should be treated as OBC, or we should be treated as a scheduled tribe, or we should be treated as a scheduled caste. So the idea that this caste census is going to throw some huge surprises around that, it is not going to happen, because whatever the migration pattern that we have seen in the 75 years in this country, they largely are from the UP and Eastern UP and Bihar, Jharkhand territory. That has been the largely. Otherwise, majority of the migration patterns are visible within the state. There is a sense of urbanization, but the proportion of the population of different caste group, that is unlikely to change even if you do this exercise on all India basis. So yes, and also remember in 1931 when the British did the caste census, at that time Jharkhand and Odisha were part of the erstwhile Bihar state. So now you've got a separate state of Jharkhand. So that does impact the percentage of each community to some extent. I want to go across to KC Tyagi. Okay, KC Tyagi, we heard from the Prime Minister, he says this is an attempt to divide Hindu society. This is an attempt, Hinduओं को बांटने की कोशिश है. That the Prime Minister is trying to unite everyone. Because you're out of ideas, you're trying to make people more aware of their caste identity by trying to split and fragment this country into caste groups. How do you respond to that criticism, KC Tyagi? राहुल जी, प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए उनका अपमान होता है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में उन्होंने कहा कि वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी कुछ जातियों की, खास जातियों की पार्टी हुआ करती थी। अब ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है, महादलितों की है। अभी मेरे मित्र पासवान जी कह रहे थे कि हमारे इतने % पिछड़ी जाति के MP हैं, इतने पिछड़ी जाति के मिनिस्टर्स हैं। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वो क्या आर्थिक आधार पे हुआ है कि जाति के आधार पे हुआ है? मंडल कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के नाम पे मिली है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के नाम पे मिली है। तो ये जो पूरा सीन है उसको जो बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और आप बहुत सही कह रहे हैं राहुल जी, बीजेपी और इंडिया लेवल पे भी जब पिछड़ों की वकालत करते हैं प्रधानमंत्री तब तो ये कास्ट होती है, अदरवाइज जब हम करते हैं तो ये पुअर बट जाता। तो पुअर तो बटा हुआ है ही है, बिटवीन अपर कास्ट, बिटवीन बैकवर्ड कास्ट, बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट। 1931 के सर्वे में बैकवर्ड की आबादी
52% थी मंडल के मुताबिक, अब ये 63% निकली है। और मैं बहुत अम्बली कहना चाहता हूं अपने मित्र पासवान जी से, पासवान जी आप अकेले पड़ गए हैं। आपके दोनों फैक्शन एलजीपी के जातिगत जनगणना सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी माझी जी जातिगत जनगणना सपोर्ट कर रही है, आपकी मुल्ला पार्टी जातिगत जनगणना सपोर्ट कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आ जाइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की तीनों पार्टी अटावली, शिंदे गुट और अजित पवार गुट, इन तीनों के बयान आ चुके हैं। अब यूपी में आ जाइए, अपना दल, राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी, उन्होंने कहा हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। असल में दिक्कत क्या होगी है कि नीतीश कुमार के इस घटनाक्रम के बाद बहुत ज्यादा बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी में है। और दूसरा पॉइंट और मैं कहना चाहता हूं, खाली जात का नहीं है, इसमें मकान, दुकान, जमीन, शिक्षा, नौकरी, कृषि, दस्तकारी के भी आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। हम अमृतकाल मना रहे हैं, 75 साल आजादी के हो गए, कल गांधी जयंती थी। समूचा देश जानना चाहता है कि 75 साल के बाद भी क्या कुछ ऐसे समूह विकास की धारा में पीछे रह गए हैं, वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। नंबर 1, अगर रह गए हैं तो स्पेशल विशेष अवसर के सिद्धांत के आधार पर उनको भी एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए। जब ये बात उठती है तो शुरू में तो इनकी पार्टी हमारे साथ थी। नीतीश कुमार सरकार ने जब ये प्रस्ताव किया है राहुल जी, उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे मित्र सुशील मोदी जी थे और वो आज भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। असल में बीजेपी की जो बिहार की है वो भी जाति के आधार पर बट गई है। जो पिछड़ी जाति के नेता हैं वो समर्थन कर रहे हैं और गिरिराज सिंह सरीखे लोग हमारी मदद कर रहे हैं इसका विरोध करके। मैं अगले पॉइंट पर आना चाहता हूं। Okay, let Guru Prakash Paswan respond to what you're saying about the fact that many BJP allies are also demanding that there be a caste census. You failed to mention Apna Dal in eastern Uttar Pradesh, all the smaller parties in Bihar, parties in Maharashtra. They're in fact demanding that they're supporting Nitish Kumar and wanting that there be a caste census, Mr. Paswan. राहुल जी, जितना समय आपने अनइंटरप्टेड वरिष्ठ नेता और हम सबके गार्जियन केसी त्यागी जी को दिया है, मैं आशा और अपेक्षा करता हूं आप मुझे भी अनइंटरप्टेड उतना समय देंगे। देखिए, लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं सुन रहा था केसी त्यागी जी की बातों को, ना 9 मन तेल होगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आज तक आपने क्या किया है? आज तक आपने कुर्मी जाति के अलावा या नीतीश जी ने अपने अलावा किसी और को आगे बढ़ाया है? नीतीश जी की पार्टी में जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है उस सभी व्यक्तियों को धोखा देने का काम नीतीश जी ने किया है। शरद यादव जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, आरसीपी सिंह जी हो, ये फहरिस्त है मेरे पास। तो नीतीश जी आज पिछड़ों के अगुआ बन गए हैं। नीतीश जी हैज सडनली बिकम द वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। दिस हैज टू बी द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द सेंचुरी। लालू यादव जी पे आइए। लालू यादव जी, when it comes to power sharing, Rahul, we must understand, when it actually boils down to sharing of power, who would become the deputy chief minister? Mr. Tejasvi Prasad Yadav. Who would become the environment minister? Tej Pratap Yadav. Who would go to Rajya Sabha? My daughter Misa Bharti. Who would go to legislative council? My wife. But you aren't really answering my question. My question was about all the allies of the BJP which are also demanding that there be a caste census. Paswan ji, you are replying the way you want without answering the question that you've been asked. Tyagi ji's point was that most BJP allies are in support of the caste census. How do you respond to this? Not all the allies, all the allies. देखिए राहुल जी, जो जवाब आपको पसंद आए वो जवाब क्वालिफाई करेगा और जो जवाब आपको पसंद ना आए वो क्वालिफाई ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एनडीए इज नॉट इंडिया लाइंस। पीपल आर फ्री टू हैव देयर ओन ओपिनियन। सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन जहां तक हमारा विषय है, बिहार की बीजेपी यूनिट को लगा कि जातिगत जनगणना करना चाहिए। वी वेंट अहेड। एज फार एज नेशनली द क्वेश्चन ऑफ कास्ट सेंसस इज कंसर्न, आई एम श्योर द टॉप लीडरशिप वुड सिट एंड डू इट, बट वी हैव टू मेक दिस सफिशिएंटली क्लियर। ये कोई कमिटमेंट है, ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मापदंड। ये कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। आपने कितना किया है, हमने कितना किया है। राहुल जी, वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ कमिटमेंट। विनय कटियार, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, Ajay Kumar from the Congress party. I'll come back to you. I'll come back to you in a moment, Mr. Paswan. Please, Dr. Ajay Kumar. Please, Rahul ji. Please, Rahul ji, मेरी बात खत्म नहीं हुई है. Okay, 10 seconds.
सर एक सेकंड, मेरे को अजय कुमार जी का भी जाना है। राहुल जी मेरी बात आपने बीच में काट दी थी। मेरे मित्र पासवान जी को आपने बोलने का मौका दिया, वो मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अच्छा त्यागी जी बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, चलिए। को 22 नीतीश कुमार जी की पार्टी को 20-21% वोट मिली हैं, जबकि कुर्मी वहां पर 2% हैं। तो एक इसके अलावा आप एक अलाई का नाम बताइए जो आपको सपोर्ट कर रहा हो। दिस इज द इशू ऑफ द पॉलिटिकल कमिटमेंट। एवरी पार्टी ऑफ एनडीए इज अपोज्ड टू यू, दे आर इन फेवर ऑफ